कंजम्पशन फंक्शन याद है आपको? कैसे लिखा था हमने? डू यू रिमेम्बर गीतांजलि? Yes, ma'am. What was that? Do you remember? Ma'am, C is equal to A plus B Y. Consumption function की बात कर रही हूँ, not the factors affecting consumption. Okay, this is consumption function. What about saving function? Consumption में positive जो subsistent level होता है, minimum level, उसको A को minus A लिखते हैं, क्योंकि जो भी हम मिनिमम लेवल खर्च करते हैं फॉर फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, उसको ए बोलते हैं, और सेविंग में वो माइनस ए हो जाएगा, सेविंग में से वो कट जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसको डिस सेविंग कहते हैं, बिकॉज फ्रॉम द पास्ट सेविंग्स वी आर स्पेंडिंग द मनी. माइनस ए प्लस बी वाई. नेम मैडम ने सेम रखे हैं, बट इट्स मीनिंग विल बी डिफरेंट. How? What is C here? You should know before solving the numerical examples. Consumption expenditure. You can note down this. Consumption expenditure. A. Autonomous consumption. What does autonomous consumption mean? At zero level of income. जब हमारी इनकम जीरो है, जो पैसे हम खर्च करते हैं उसको ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं. What about this? B. Marginal propensity to consume. Propensity to consume. कि जितना हम खर्च कर लेते हैं बीच में से. And Y is national income. First of all, we should know about all these things. Only then we can solve the questions. Gitanjali, is it clear? About consumption function. Okay. So now, aggregate demand is equal to aggregate supply. What can we call aggregate demand? C plus I is equal to aggregate supply को मैडम ने बोला था इनकम भी बोलते हैं, तो यहाँ पे y आएगा. C plus I. What does I mean? Investment expenditure. This is a very basic thing which we should know. Okay? मैंने दोनों फार्मूले आमने सामने लिखे हैं so that we can understand the abbreviations completely. C S saving function. माइनस ए ऑटोनोमस सेविंग. जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो भी हम सेव करते हैं उसे ऑटोनोमस सेविंग कहते हैं. बी. मार्जिनल प्रोस्पेरिटी टू सेव. ये सेविंग की प्रोस्पेरिटी है हमारी, दैट हाउ मच वी विल बी सेविंग. मार्जिनल प्रोस्पेरिटी टू सेव. नेक्स्ट इज वाई, नेशनल इनकम. Save. Y means national income. I से कुछ लोग डिनोट करते हैं, बट केन्स ने मोस्टली यूज किया है Y अल्फाबेट. Then this is the I, investment expenditure. So these are the things which we need to write down when we are doing some question. Okay, one more thing will like to tell you that when we subtract consumption from income, हमारी इनकम में से अगर हमने जो यूज कर लिए पैसे उसको माइनस कर दे तो हमारी सेविंग आ जाती है. Am I right, गीतांजलि? Yes, ma'am. और अगर सेविंग को माइनस कर दे तो कंजम्पशन आ जाती है. Y minus C S, Y minus S C. So these are the formulas which we will be using. If any other formula will come, I will tell you. But before solving the question, ये क्वेश्चन पेपर में 6 मार्क्स का भी आता है, 4 का भी आता है. If he is asking you 3-4 points in this ABC, then he will be giving you 6 marks.
If only two things we are to find out, equilibrium level of income, only Y we are to find out, we will get 3 marks. If consumption also we are to find out, we will get 4 marks. If anything else he is asking, then we will get 6 marks, right? So you note down it. Okay, everybody is to note down. Welcome everyone to the class. I have started with the work so that we should not waste our time. Consumption is A plus BY, saving is minus A plus BY. Now we are going to start with one of the questions. Gitanjali, is it noted? Can we start? Yes, ma'am. This is the basic thing only. Arpan, you have noted, bete? Arpan Jor? Okay, yes, let us, good, bete. Let us start with the question. Consumption function will be given to us. I will not be writing the statement. I will be solving the questions only, and statement I will be writing whichever is required. Now we have in the economy, it is written in English, I am writing mathematical part only. C is equal to 500 plus 0.75 Y. I is equal to 800. Where C is consumption, Y is income, I is investment. Calculate the equilibrium level of income and consumption expenditure. This is the question. Only two figures are given to us and one consumption function. What we are to do from here? I'm going to write down the equilibrium level of income we are to find out. What is the method of ADAS approach? Equilibrium level of income, ये लिखना पड़ेगा हमें, will be at the point where AD is equal to AS. हमने ये क्वेश्चन किया है जहां पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगी, एट द सेम प्लेस लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड. हमें वही निकालना है. फर्स्ट पार्ट में मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, बोल के बता रही हूँ आपको इसकी पिक भेजी हुई है. तो ये वाला क्वेश्चन हमने कैसे करना है? एग्रीगेट डिमांड इज C प्लस I और एग्रीगेट सप्लाई इज Y. तो C की जगह पे हमने ये पूरा कंजम्पशन फंक्शन लिखना है बच्चे. 500 plus 0.75y plus I 800 is equal to Y. Whatever is given to us, I have written all. What is up to here? C. और what is this? I. C plus I हो गया. Is it okay, Arpan? Yes, Gurpreet. ये हमने इक्वेट कर दिया और हमने इसको लिख दिया इक्वेशन में. Okay, what does this 500 mean? For food, clothing and shelter, 500 crore rupees are required in the economy. This is the meaning of 500. 0.75 means out of 100 rupees, we will be consuming 75 rupees for our basic needs. अपना खर्चा 100 रुपया अगर हमें मिलेगा तो 75 खर्च करेंगे, बाकी 25 बचेगा. ठीक है, 0.75 का मतलब Y is the national income. Just see, let us recall 6th class study now. ये Y है, ये 0.75 है, उधर ले जाइए. Y वाली टर्म्स कलेक्ट कर लीजिए. 500 plus 800 is equal to Y minus 0.75 Y. Is it clear? Now let us start. 1300 is equal to, what does this mean? Y minus 0.75. 100 में से 75 गए, कितने होते हैं? 25. तो 0.25 आएगा आपका Y. तो मल्टीप्लाई के 25 नीचे आ जाएंगे. 0.25. ये हमें लेवल ऑफ इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम के बारे में बताएंगे. कैसे? 1300
डेसिमल का 100 ऊपर डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू y 4s are. What is this? Y is equal to 5,200 crore rupees. This is the equilibrium level of income. This is the equilibrium level of income. Is it clear up to here? Any doubt? Yes, Gurpreet, any doubt? If you want to ask any question, you can ask. Second part. First part was find equilibrium level of income. Second part, find consumption. Put y is equal to 5,200 in C. C वाली इक्वेशन में हमने y के प्लेस पे 5,200 लिख देना है. In place of y, just see 500 plus 0.75 into 5,200. So that means we are to multiply 75 by 52. डेसिमल के 100 से 2 जीरो कट जाएंगी. 150, 37, 10, 8, 9, 3,900. So what we got? 4,400 crore consumption expenditure. तो आंसर कैसे लिखेंगे? फर्स्ट पार्ट, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम प्लस 5,200 consumption level. Whatever word he is using, you will be using the same. If crore rupees is given, you will write down crore. Just see, you can see very well that 4,400 crore rupees economy में जो है खर्च हो रहे हैं. ये हमारा क्वेश्चन है, in which we will be getting either 6 marks or 4 marks in the final examination. This question is asked. So any doubts regarding this, Gitanjali? Better you note it down with me. I have explained you here. Is it clear? Yes, ma'am. Gitanjali, ठीक है बेटे? अर्पण, Yes. चेक कर लो बेटे, ये क्वेश्चन हमें करना है. हम इसके जैसे और क्वेश्चन भी करेंगे. दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन. एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, फिगर विल बी डिफरेंट बट मेथड कैन नॉट बी चेंज. वो तो यही रहेगा, AD इज इक्वल टू AS. इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा कभी भी. नोट करें इसको, फिर हम नेक्स्ट करते हैं. लेट अस स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन. I am not utilizing my time in writing the question. I am speaking out the question. You can understand well. क्योंकि ये इसमें जो कैलकुलेशन है that are very easy of 6th standard level. So we need not to worry. We will be able to do these sums in a easy manner. Yes, any questions you can ask me. Let us start with the second question. Saving function is given now. In place of C, S is given. Minus 200 plus 0.35 equilibrium income level is given to us 1,500. Calculate investment expenditure. Number 2, autonomous consumption. Investment. Only this much, 2 parts only. Investment we have already written. 2 parts are there, 4 marks will be there. Let us discuss firstly the saving function. What is that? Minus 200. क्या मतलब है इसका? कि 200 रुपीज हमें पास्ट में से खर्च करनी पड़ेगी. ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर निकालने के लिए वी डोंट हैव एनी अदर थिंग गिवन, ओनली लेवल ऑफ इनकम इज गिवन. तो हम जो हमें दिया चलेंगे हम वहीं से. अगर हमने दिल्ली जाना है
तो हम गुरु हसाई में या फिर हरिपुरा में है या अबोहर में है, वहीं से हमें चलना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। जहां पे खड़े हैं वहीं से चलेंगे। हमें क्या दिया है? सेविंग। और हमें क्या दिया है? इनकम। तो इनकम भर दीजिए। y की जगह पे क्या भरेंगे? 1500। पुट y इज इक्वल टू 1500। मैं शॉर्टकट्स भी यूज कर रही। Everything I am writing for you so that you can understand it well. 1500, 00 से 00 cancel, multiply 30 by 15, 450. मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 15 3s are 45, 20 with 20 cancel. So 450 minus 200 is going to give you 250. What is this? Saving. What is this? सेविंग। अब आप मुझे बताइए कि जो दूसरा मॉडल हमने किया था, 2 क्वेश्चन किए थे, गीतांजलि आप बताएंगे कौन कौन से 2 है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम की अप्रोच? कैन यू टेल मी? एक तो हमने पिछले क्वेश्चन में की एडीएएस अप्रोच, दूसरी क्या है? नाम मालूम है बेटे? दूसरा क्वेश्चन बड़े वाला 6 मार्क्स का कौन सा था गीतांजलि? टूल्स कौन कौन से हमारे? डिमांड, सप्लाई, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। तो एक था एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एक है इन्वेस्टमेंट, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट मॉडल। तो इसमें क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई और इसमें क्या होता है? सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। एम आई राइट? मैंने रिपीट कर दी ये दोनों चीजें। ADAS अप्रोच में हम कहते हैं AD is equal to AS at that point level of equilibrium is there. सेविंग इन्वेस्टमेंट में हम बोलते हैं जिस जगह पे सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल है। अब यहाँ सेविंग 250 है तो इन्वेस्टमेंट भी तो इतनी होगी। क्यों? क्योंकि लेवल ऑफ इनकम दिया हुआ है ना, तो दोनों बराबर होंगे बच्चे। गुरप्रीत आप नहीं बोल रहे बेटे। बेटे जब आप बोलते हो ना तो इंटरेक्शन होता है। इट मेक्स योर क्लास यू नो इंटरेस्टिंग एंड यू कैन लर्न मोर थिंग्स व्हेन वी आर कन्वर्सेटिंग। ओके यस गुरप्रीत, सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल है तो इन्वेस्टमेंट भी हमारी क्या होगी? 250। क्यों? क्योंकि सेविंग और इन्वेस्टमेंट एट इक्विलिब्रियम लेवल, आप यहां लिखेंगे saving is equal to investment. Therefore, investment is 250. First answer is there. Now we are coming to the second part. Autonomous consumption क्या होती है? मैंने आपको बहुत बार बताया है, जहां पे इनकम 0 वहां पे autonomous consumption, पर हमें तो सेविंग दी हुई है तो हम वहीं से चलेंगे जो हमें दिया है। जो हमें दिया है वहीं से चलना है ना। तो यहाँ पे 0 भर दीजिए y, 0.30 y, पुट y इज इक्वल टू 0। तो सेविंग क्या आ गई? -200 प्लस 0.30 इंटू 0 -200। व्हाट अबाउट द कंजम्पशन? हमें तो कंजम्पशन निकालनी है ना, वो कैसे निकालेंगे? इनकम में से सेविंग माइनस कर दो। व्हाट इज इनकम? आवर इनकम इज 1500। 0, 1500 नहीं है। हम कहा क्या निकाल रहे हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन। कहाँ पे निकलेगी? जहां पे इनकम 0। ये मैंने बोल्ड कर दिया। अब ठीक है? इनकम कितनी है? 0 माइनस -200, तो कंजम्पशन कितनी हो गई? 200। जब हमारी इनकम 0 है तब भी हमारा मिनिमम कंजम्पशन 200 करोड़ पूरी इकोनॉमी का है। घर की बात नहीं कर रहे। वी आर टॉकिंग अबाउट द टोटल। इज इट क्लियर नाउ? let me explain it again to you. क्या दिया था हमें? सेविंग -200 प्लस 0.30 y. What is here 0.30? Can anybody say 0.30 क्या है बच्चे? अर्पण आप बताइए। हाँ बताइए अर्पण, पहले अर्पण बताएगी। अभी बताया है क्या होता है बी। चलिए गीतांजलि आप बताइए फिर। मैम जैसे इनकम 100 है तो हमने उसका 30% यूज कर लिया, वो चीज है 0.30। ये ऐसे का क्या मतलब है? चलिए बताइए, 1 मिनट।
एच का मतलब क्या है गीतांजलि? सेविंग। तो फिर हम सेविंग इनकम क्यों, फंक्शन। कंजम्पशन क्यों बोल रहे हैं? आपने बोला 100 में से 30 खर्च करेगा, रॉन्ग। 100 में से 30 बचाएगा, क्यों? बचाएगा। क्योंकि ये तो सेविंग है, सेविंग Yes. फंक्शन है, ये कंजम्पशन नहीं है। अब पता लग गया 0.30 व्हाट इज दैट? मार्जिनल प्रोस्पेरिटी टू सेव। सेव। व्हाट इज दिस? मार्जिनल प्रोस्पेरिटी टू सेव। क्लियर करोगे, अगर आप बोलोगे तभी आप मैडम को पता चला ना कि ये चीज क्लियर करनी है हमने। अर्पण, आपको क्लियर हुआ बेटे? अर्पण बोलिए बेटे, 0.30 क्या है? सेविंग, कि हम 100 रुपए में से 30 रुपए बचाएंगे, ठीक है? तो इसमें हमने क्या किया, 1500 भरे, क्यों? क्योंकि हमें निकालना है लेवल ऑफ जो है इन्वेस्टमेंट, बट हमें दिया सेविंग हुआ है, तो हम सेविंग निकालेंगे पहले। सेविंग हमारी आ गई 250। सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वल है, देयरफॉर सेविंग इज इक्वल टू 250, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 250। ये हमारा फार्मूला है। एट इक्विलिब्रियम लेवल सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सेविंग 250 है इसलिए इन्वेस्टमेंट भी 250 है। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे दिया तो सेविंग फंक्शन है, इन्वेस्टमेंट कैसे निकालें? अरे भाई दोनों इक्वल है, अगर सेविंग आ गई तो इन्वेस्टमेंट भी आ गई। अब हमने करना क्या है, ऑटोनोमस निकालनी है कंजम्पशन। हमें कंजम्पशन दी नहीं हुई, हमें सेविंग दी है, तो हम इनकम को 0 भर के पहले सेविंग निकाल लेंगे, ऑटोनोमस सेविंग निकालेंगे। उसमें क्या आ गया हमारा, इनकम माइनस सेविंग, कंजम्पशन आ गया हमारा। पहले सेविंग आई -200, ये आ गया -200 प्लस 200। दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। पेपर में ये वाला क्वेश्चन वो ज्यादा डालता है, क्योंकि बच्चे इसमें मिक्स एंड मैच कर जाते हैं, गलत बोल जाते हैं, गलत लिख जाते हैं, जिससे उनको कंफ्यूजन होके क्वेश्चन गलत हो जाता है। बट वी आर नॉट टू commit these mistakes, that's why I'm giving it to you। वैसे तो बुक में क्वेश्चन किए रहते हैं, टीचर का मीनिंग ही ये है कि टीचर बार बार एक्सप्लेन करके आपको क्लियर कर दे कि हाँ भाई यहाँ पे ये काम ऐसे करना है। इज इट क्लियर? आई थिंक आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस गीतांजलि? यस मैम। क्लियर है सबको? नेक्स्ट करें गुरप्रीत? Yes, कैन वी ma'am. मूव फर्दर? गुड, लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट। मैं सारी टाइप के क्वेश्चन चाहती हूँ कि आपको एक एक करवा दूं, फिर आपको मैंने 10 क्वेश्चन भेजे हैं, वो सारे आपने कर लेने हैं नोटबुक पे, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ऐसे तो देखने से बुक में पता नहीं चलता है कि क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है भाई, ये तो पता चलता है क्या कर रहा है, पर क्यों ये नहीं पता चलता। तो हियर टीचर इज रिक्वायर्ड टू टेल यू व्हाई इट इज हैपनिंग लाइक दिस, ठीक है? So madam wants to make you everything clear. minutely आप इसको ऑब्जर्व करें कि कहाँ पे मैम क्या कर रही है, फिर आप खुद करें और मैडम से पूछ भी ले बाद में, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन अब हमारा चल रहा है, इसके अंदर हमें कंजम्पशन फंक्शन दिया है फिर से 100 प्लस 0.75y कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इनकम, इन्वेस्टमेंट इज ₹150 crores. Now he has given us the units. पहले क्या थे, खाली नंबर थे, अब हमें क्या दिया है, उसने हमें दे दिया है कि ₹1500 इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। पहले तो इनकम का लेवल निकालना है हमने, दूसरा कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग 2017 में आया एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। 3 चीजें पूछी हैं, नंबर कितने मिलेंगे? 6। चलिए देख लीजिए अब इस क्वेश्चन को। रूल में कोई भी चेंज नहीं है, क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है ही AD इज इक्वल टू AS, वही लगाना है। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम is determined at a place where
मैडम इसको नीचे लिखती है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। AD इज इक्वल टू AS। AS को हम इनकम भी बोलते हैं। मैंने आपको शो किया था कि दोनों कॉलम में सेम आ गया है। अब आप AD को लिखेंगे C प्लस I। C की जगह पे क्या लिखना है? 100 प्लस 0.75y। इज इट ओके? सभी को पता चल गया C कहाँ से लिखा है? फर्स्ट लाइन से। और इनकम कितनी है? 150 इज इक्वल टू क्या है? Y। नेक्स्ट स्टेप क्या है? Y वाली टर्म राइट हैंड साइड पे ले जाओ। क्या है? 0.75। व्हाट डज इट मीन? 100 रुपए में से 75 रुपए खर्च कर लिए, ये कंजम्पशन है। दूसरी साइड पे मैडम ने एरो लगा दिया। 100 प्लस 150 y माइनस 0.75। 100 में से 75 y गए, 25 रह जाएंगे और इधर है 250, इधर आ गया 25। क्या 25 आएगा? गलत है। कितना आना चाहिए? बोलिए गीतांजलि। मैडम ने रॉन्ग लिखा है, गलती बताइए जल्दी से। 0.25 आएगा। बिल्कुल ठीक है, 0.25 आएगा क्योंकि हम 100 के पीछे की बात कर रहे हैं। 100 में से 75 रुपीज कंज्यूम कर रहा है तो 0.25 आ गया। डिवाइड में गया 0.25, 100 ऊपर गए, डेसिमल के नीचे 25 हो गया। डेसिमल रिमूव कर दिया क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे आ गया 100 इंटू 10, 1000 करोड़ नेशनल इनकम आ गई हमारी। उसने पूछा है फाइंड द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। हट गया। फाइंड द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। कैन यू हियर मी चिल्ड्रन? अर्पण, इज इट क्लियर? सेकंड पॉइंट, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैसे निकालना है? पुट y इज इक्वल टू 1000 इन C। C में in place of y we need to write 1000। 0.75 into 1000, 20 तो कट गई, 750 आ गया। You can calculate it, divide by 100, 2 0 कट गई, 750, 850। What is this? 850 crores। ये क्या आया? कंजम्पशन। तीसरा आंसर क्या चाहिए? सेविंग। सेविंग का फॉर्मूला क्या है? इनकम माइनस कंजम्पशन। इनकम थी 1000, 850 रुपीज हमने खर्च कर दिए। अभी यहाँ जीरो नहीं है। क्यों जीरो क्यों नहीं है गीतांजलि? यहाँ पे इनकम पिछले क्वेश्चन में आपने बोला था कि इनकम 1500 है, मैडम ने कहा नहीं गलत है। यहाँ पे क्यों कह रही है मैम? वहाँ पे ऑटोनोमस कंजम्पशन थी कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी खर्चा हो रहा था। जो जीरो इनकम पे खर्चा हो रहा था, लेकिन ये खर्चा किस पे हो रहा है? 1000 रुपए के पीछे, 850। तो अब इसको माइनस कर देंगे। 150 करोड़ रुपीस जो है सेविंग है। तीनों चीजें हमने निकाल ली हैं। मैंने बोल्ड लेटर्स में आंसर लिख दिया। फर्स्ट नेशनल इनकम, सेकंड है कंजम्पशन इन द इकोनॉमी और थर्ड नंबर पे है सेविंग। आई होप इट इज क्लियर नाउ। यू मे नोट इट डाउन। मेथड में कोई फर्क नहीं आया। अगर वो कहता यहाँ पे कि फाइंड आउट द इन्वेस्टमेंट तो वो तो उसके इक्वल ही हो जानी थी। ठीक है, 150 है, 150 ही ये है। अगर हम ना भी निकालते सीधा भी लिख सकते थे ना। बेटे आप देख रहे हैं गीतांजलि, ना भी निकालते तो भी दोनों सेम आने थे। क्यों? क्योंकि हमने लिख देना था एट इक्विलिब्रियम लेवल सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। कुछ बच्चे ऐसे भी लिखेंगे, पेपर में जो दिमाग में आया हम वैसे ही लिखेंगे, लेकिन आंसर सेम ही आएगा। राइट? अभी मैडम ने कैलकुलेट करके दिखाया आपको। कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। क्या लिखना है? एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। दोनों ठीक है। ठीक है, मार्क्स पूरे मिलेंगे 6 आउट ऑफ 6। कोई भी मेथड लगाए, करिए पूरा इसको। लेट अस नोट इट। टाइम बताइए। हाँ ओके बेटे, आपका 10 बजे लगती है क्लास नेक्स्ट? यस मैम। Okay, time is over. So I will send you few questions. You will be trying it, practicing it. Okay.
इट विल मेक यू मोर कॉन्फिडेंट। यस कल कोशिश करेंगे 5 मिनट और पहले क्लास लगाएं ताकि आपके क्वेश्चन जो है ज्यादा से ज्यादा हम कंप्लीट कर पाए। सो टाइम लिमिट इज देयर। थैंक यू। एनी डाउट्स? इज इट ओके? यू अंडरस्टूड एवरीथिंग? अर्पण बेटे ठीक है सब? अच्छा लगा? ओके, थैंक यू। हैव ए नाइस डे।